الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علم۔ ہم لوگوں کا درس کا عنوان ہے مسلمانوں کے حقوق۔ اس مناسبت سے پچھلے درس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 6 اہم حقوق کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور حدیث کے دیگر کتابوں کے اندر میں موجود ہے۔ اس حدیث میں جو 6 حقوق بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ پہلا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے اور دوسرا مسلمان اس کا جواب دے۔ دوسرا، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے اور دوسرا مسلمان اس کا جواب دے۔ تیسرا، اگر کسی مسلمان کو مشورے کی ضرورت ہو اور وہ دوسرے مسلمان سے مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دے۔ اور چوتھا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے وہ قبول کرے۔ اور پانچواں، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت کے لیے جائے۔ اور چھٹا، جب مسلمان وفات پائے تو اس کے جنازے میں جائے۔ اس حدیث میں 6 اہم حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس میں سے پچھلے دروس میں 3 حقوق کو قرآن و سنت کے روشنی میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ آج باقی کا حقوق پر گفتگو کی جائے گی۔ تو چوتھا حقوق جو ایک مسلمان کے لیے ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ یہ حق ہے اس کا کہ اب دعوت دے تو اس کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ اب دعوت کے مناسبت سے قرآن و سنت کے اندر میں کون کون سے اہم پہلو ہے جس کو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اس پر ہم لوگ غور کرتے ہیں اور اس پہ وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلا ہے کہ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا اگر دوسرا مسلمان دیتا ہے وہ ضروری ہے۔ آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے سماج کے اندر میں، اپنے گاؤں کے اندر میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہوتا ہے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان میں، اگر اس کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ دعوت کو ہی انکار کرتا ہے، جبکہ شریعت کے اصول کے حساب سے اگر کوئی انفرادی اگر آپ کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ 3 دن کے اندر میں اس ڈسپیوٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ جو جھگڑا مسلسل کئی برسوں تک جاتا ہے
اور اس مناسبت سے لوگ دعوت جب دیتے ہیں تو دعوت کو کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ انکار کرتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے بخاری شریف کے اندر میں 5177 نمبر حدیث ہے. اس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کے وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کی دعوت دی جائے. یعنی آپ ولیمہ کر رہے ہیں، جو سنت طریقہ ہے شادی پر ولیمہ کرنا، تو اس میں صرف مالدار کو انوائٹ کیا جائے اور محتاجوں کو نہ بلایا جائے، تو وہ بدترین کھانا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس نے ولیمہ کی دعوت قبول نہیں کرے، اسے انکار کر دے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی اللہ اور رسول کا حکم ہے اور اس حکم کو آپ توڑ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ اور رسول کا کیا ہوگا؟ نافرمانی آپ کر رہے ہیں. اسی طریقہ سے مسلم شریف کے اندر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم دعوت میں جب تم کو بلایا جائے. یعنی جب آپ کو دعوت دیا جائے اور انوائٹ کیا جائے تو اس میں کیا ہونا ہے؟ آپ کو جانا ہے، اس میں شامل ہونا ہے. مسلم شریف کے اندر میں ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں شادی یا ایسی ہی کسی دعوت پر بلائی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. شادی چونکہ سنت کا دعوت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور اس میں کہا جا رہا ایسی ہی کسی دعوت، یعنی دوسرا بھی دعوت جو ہونا چاہیے وہ سنت کے مطابق ہونا. یعنی کوئی بدعت کا دعوت، کوئی شرک والی کاموں میں دعوت میں انوائٹ کیا جائے، اس کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. یعنی جو شریعت سے ثابت دعوت ہو، اس دعوت کے اندر میں اگر آپ کو انوائٹ کیا جائے، چاہے وہ ولیمہ کا ہو یا کوئی اور ہو، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو شامل ہونا ہے. تو یہ ایک مسلمان کا ڈیوٹی ہے کہ دوسرا مسلمان اگر دعوت پیش کرے تو اس کو دعوت کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قبول کرنا ہے، آپ کو اس کو انکار نہیں کرنا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے اس میں. دوسرا ہے کہ دعوت کو کھانا ہے. دعوت میں مسلم شریف کے اندر میں بھی روایت ہے اور اس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرے، اگر روزہ سے ہے تو دعا کرے، نہیں تو کھائے. تو اگر آپ روزہ سے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں جس نے آپ کو دعوت دی ہے. اگر آپ روزہ سے نہیں ہیں اور کوئی شرعی دوسرا پرابلم نہیں ہے تو دعوت کے اندر میں جانا چاہیے اور اسے کھانا چاہیے. تو قبول بھی کرنا ہے اور کھانا بھی ہے. اور ایک اثر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ جب ان کو ولیمہ یا کسی اور چیز کی دعوت دی جاتی تو یہ روزہ سے بھی ہوتے تھے تو بھی شرکت کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر میں یہ روایت موجود ہے. تو اس سے اس بات کی اہمیت پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو دعوت کو قبول کرنا اور دعوت کے لیے کھانے کے لیے جانا ضروری ہے. اسی طریقہ سے جب دعوت میں جاتے ہیں ہم لوگ تو جنرلی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جب دعوت میں جاتے ہیں، جس بندے نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اور اس کھانا میں کچھ کمی بیسی ہو تو ہم لوگ بہت ساری اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے کہ کھانا میں عیب نہیں ٹٹولنا ہے. کھانا کے اندر میں عیب آپ نہیں ٹٹولے. یہ روایت بخاری شریف کے اندر میں ہے. اس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالو. اگر پسند ہو تو کھا لیا کرو، اگر نہ پسند ہو تو چھوڑ دیا کرو. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو نہیں کھائیے، مگر عیب اس میں نہیں ٹٹولیے. تو یہ تیسرا نقطہ ہے دعوت کے حوالے سے. چوتھا ہے
कि दावत खाने के लिए हम लोग जब जाएं और दावत खाएं तो साहिब दावत के लिए दुआ करें, यानी जिसने आपको दावत में इनवाइट किया है उसके लिए बरकत का दुआ करें। मुस्लिम शरीफ के अंदर में ये दुआ मौजूद है। आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीका से भी दुआ उसके लिए कर सकते हैं, या जो हदीस के अंदर में दुआ है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मुस्लिम शरीफ के अंदर में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम फगफिर लहुम फरहमहुम। इसका मतलब है कि अल्लाह बरकत दे इनके रोजी में और बख्श दे इनको और रहम कर इन पर। तो ये है यानी बरकत का, रोजी का और बख्शिश और रहम का दुआ उसके लिए करना चाहिए जो आपको दावत के अंदर में इनवाइट करे। तो ये चौथा हुकूक था एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान के लिए कि जब उसको दावत दे तो दावत को कबूल करें। और उसके हवाले से जो चंद बातें थी यहाँ पर रखा गया। उसके बाद से पांचवा जो हुकूक है वो ये है कि जब वो बीमार हो तो इसकी इयादत करें। यानी एक मुसलमान जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना है। इयादत करने का मतलब है कि उसके से मिलने जाना है और उसके तबीयत के बारे में पूछना है और उसको तसल्ली देना है और पॉजिटिव बात करना है। हम लोग का आदत क्या है कि हम बीमार के पास मिलने अगर जाते भी हैं तो निगेटिव बात करते हैं और उसको डराते हैं, अरे फलाना आदमी को ये हुआ था तो ख़त्म हो गया, फलाना आदमी को ये हुआ था तो यहाँ चला गया। तो ये सब अल्फाज नहीं करना है। अल्लाह के जात से उसके लिए दुआ करना है और उसको तसल्ली देना है कि इंशाअल्लाह आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये सब चीज़ पॉजिटिव बात वहाँ करना है, निगेटिव बात नहीं करना है। तो एक मुसलमान बीमार हो तो उसके इयादत के लिए जाना है। इसमें कुछ अहम बातें जो इसके हुकूक के अंदर में है उस पर हम लोग पहले नज़र डालते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इयादत का हुक्म है, यानी इयादत करना एक मुसलमान पर ज़रूरी है, जाना चाहिए। और दूसरा है कि इयादत करने की फजीलत क्या है, कि जब आप कोई आदमी बीमार होता है तो उसको इयादत करने आप जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, क्या फजीलत है। अबू दाऊद शरीफ और तिरमिजी शरीफ के अंदर में ये रवायत मौजूद है और इसके रावी हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं कि जो शख्स शाम के वक्त मरीज के इयादत के लिए निकलता है तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते भी निकलते हैं। एक आदमी अगर शाम के वक्त किसी अपने मुसलमान भाई के बीमारी के लिए इयादत में जाता है तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते भी निकलते हैं जो उसके लिए सुबह तक बख्शिश तलब करते रहते हैं और जन्नत में उसे एक बाग भी हासिल होगा। और जब कोई सुबह के वक्त इयादत के लिए निकले तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए शाम तक बख्शिश मांगते हैं रहते हैं और जन्नत में उसे एक बाग भी हासिल होगा। तो ये इसका फजीलत है कि 70,000 फरिश्ते आपके मग़फ़िरत के लिए खड़ा हो जाते हैं। अगर आप एक मुसलमान के बीमारी के अंदर में जाते हैं, पूछते हैं और उसके तसल्ली देते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो ये फजीलत उसका है। उसी तरीक़ा से सिलसिला सहिया के अंदर में एक रवायत मौजूद है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मरीज की इयादत की तो जब तक वो बैठ न जाए रहमत में डूबा रहेगा और जब वो बैठ जाएगा तो रहमत में गोता लगाएगा। तो ये फजीलत का दूसरा हदीस है। उसी तरीक़ा से मुस्लिम शरीफ के अंदर में है फजीलत के हवाले से, और ये इसका रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि आज तुम में से किसने रोज़ा रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के परजंस में दरियाफ्त किया कि आज तुम में से किसने रोज़ा रखा है, तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज तुम में से कौन सा
कौन जनाजे में शामिल हुआ है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से किस शख्स ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम में से किसी शख्स ने किसी मरीज की इयादत की है? तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस किसी आदमी में ये सब औसाफ इकट्ठे होते हैं तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। यानी अब देखिए नेकी और सहाबा का तर्जमल ये है कि वो कोई बीमार होता तो उसके बीमार में जाते, नफली रोज़ा कसरत से रखते और जनाजे के अंदर में भी शरीक होने की कोशिश करते। तो ये सब चीज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तो एक ही दिन में ये सब अमल किए थे। यानी ये सारी अमल इंसान के साथ अगर एक साथ आता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा, इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरत दी है। तो ये इयादत की फजीलत है और इयादत का अहमियत है। उसी तरीक़ा से इयादत करने के लिए आप गैर महरम औरत मर्द है तो औरत है तो मर्द का इयादत के लिए जा सकती है अगर कोई बीमार मुसलमान है तो। ये बुखारी शरीफ में रवायत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल को बुखार हो गया। बयान किया कि फिर मैं उनके पास इयादत के लिए गई और पूछा मोहतरम वालिद आपका मिजाज क्या है, और फिर बिलाल से भी पूछा कि आपका क्या हाल है। तो यानी आप जो हैं जो गैर महरम हैं उनको भी पर्दे के लिहाज में जाकर आप इयादत कर सकते हैं, जो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उनको मदद कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर कोई, ये तो मुसलमान के हवाले से है, अगर कोई काफिर है जो मुसलमान नहीं है तो उसके भी इयादत के लिए आप जा सकते हैं। आपका पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो पड़ोसी के हकूक़ के हवाले से उसके पास भी इयादत के लिए जाना चाहिए। ये रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर में, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी लड़का था अब्दुल कुद्दुस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक दिन वो बीमार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और उसके सिरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ, यानी उसको हिदायत के लिए रिक्वेस्ट किया। तो उसने अपने बाप के तरफ देखा, उसका बाप यहूदी था तो उन्होंने अपने बाप के तरफ देखा, बाप वहीं मौजूद था। उसने कहा अबू कासिम जो कुछ कहते हैं मान ले। यानी वो लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदी ईमान नहीं लाते हैं, मगर उनको जब कहा गया तो उन्होंने उस वक्त अपने बेटे पर रहम आया उसको और बोला कि वे कहते हैं तुम बात मान लो। चुनांचे वो बच्चा इस्लाम ले आया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो आपने फरमाया शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने इस बच्चे को जहन्नम से बचा लिया। यानी कोई इंसान अगर आखिरी वक्त में इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो भी जन्नत का हकदार हो जाता, जैसे इस हदीस के अंदर में इसका वजाहत हो रही है। तो ये रहा कि अगर काफिर मुशरिक गैर कोई है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद है कि इयादत के लिए जब आपको जाना है तो कहाँ पर बैठना है। तो इयादत के लिए मरीज के पास जाए तो उनके सर के पास, उनके सिरहाने के पास आपको बैठना है और बैठकर उनके लिए दुआ करना है। ये अल अदबुल मुफरद के अंदर में बुखारी ने इसको रवायत किया है कि सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज के इयादत फरमाते तो उसके सर के पास बैठते थे, फिर 7 मरतबा ये दुआ करते अस्अलुल्लाहुल अजीम रब्बुल अर्शिल अजीम अन यस्फिका। ये दुआ 7 मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अजमत वाले अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अर्श अजीम का रब है कि तुझे सिफा अता फरमाए। तो सिफा का दुआ कि अल्लाह ताला इस बीमार जो में मुब्तला है इसको सिफा अता फरमा दे और इसके तकलीफ़ों को दूर कर दे। आप अपने
लैंग्वेज में और अपने तरीका से भी उसके लिए दुआ आप कर सकते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस तरह से करता है, अगर उसके मौत आने में ताखीर होती है तो इस दुआ से वो अपनी तकलीफ से आफियत पाता है। यानी अगर उसका जिंदगी है, इसलिए कि मौत का इलाज नहीं है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत उसका मुकर्रर रख दिया है तो आप दुआ करेंगे तो दुआ का फजीलत का बेनिफिट मिलेगा, मगर दुआ से वो सेहतयाब नहीं होगा। अगर वो उसका मौत नहीं है, उसका पास वक्त है, तो अल्लाह सुब्हानहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये दुआ उससे जो जाकर करता है तो अल्लाह ताला उसको शिफा देते हैं और उसमें से शिफायाब हो जाता है। ठीक है जी। तो ये रहा इयादत के मुतल्लिक 5वां हुकूक और उसके अहम बातें। अब हम लोग आते हैं कि 6ठा हुकूक क्या है, कि जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाता है, वफात पा जाता है, तो उसके जनाजे के साथ जाना, ये भी क्या है, एक मुसलमान का हक है कि अगर एक मुसलमान आपका भाई इंतकाल करता है, आपको खबर मिलता है, तो उसके जनाजे में जाना आपके लिए ज़रूरी है, कोशिश करना चाहिए, जाना चाहिए। इसके हवाले से तो जनाजे के हवाले से किन किन बातों पर आपको गौर करना है, कुरान और सुन्नत में कौन कौन सी बातें वजाहत के साथ बयान किया गया है, उसको पूरा करना है। पहला नंबर कि जब आपके पास वफात का खबर मिले, कोई इंतकाल कर गया है, तो उसका जैसे खबर मिले तो उसके लिए आपको दुआ करना है, जिसको सूरह बकरा आयत नंबर 156 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है कि वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कोई भी आपको मौत का खबर मिले तो ये आपको दुआ पढ़ना है कि हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी के तरफ लौटने वाले हैं, हम अल्लाह ही के हैं और उसके ही तरफ लौटने वाले हैं। ये कुरान मजीद के अंदर में इसका वजाहत मौजूद है। उसी तरीक़ा से मुस्लिम शरीफ के अंदर में हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान बंदे को कोई मुसीबत आती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, और उसके बाद पढ़ता है अल्लाहुम अजरनी फी मुसीबती व अखलिकनी व खैरन मिनहा। तो ये दुआ अगर वो पढ़ता है तो अल्लाह उसके मुसीबत में अजर देता है और उसके बेहतरीन बदला अता करता है। तो ये चीज़ें करेंगे तो उसमें उसको अजर मिलेगा और उसके लिए जो परेशानी है वो दूर होगा और बेहतर उसका अजर अता करेगा। तो पहला हक यही है कि जैसे ही आपको मुसलमान किसी भाई का खबर मिले तो ये दुआ पढ़े और उसके लिए दुआ करे। उसके बाद अगर आप पड़ोस में हैं तो पड़ोस वाले को हकूक ये है कि जिसके घर में कोई इंतकाल किया गया है या कोई मुसीबत में आया है तो उसके लिए खाना तैयार करना, अहले मैयत के लिए खाना तैयार करना है। जिनके घर में मैयत हुई है उनके घर वालों के लिए खाना तैयार करना उस मुसलमान पड़ोसी भाई का हुकूक है जो पड़ोस में रहता है। जिस पड़ोस का मतलब है, पड़ोसी के हुकूक में बहुत डिटेल कई दरसों में वजाहत की गई थी, तो उसके हवाले से उसका खाना तैयार करना उसका ड्यूटी है। आजकल ये देखा जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस घर के अंदर में मैयत है उस घर में ही लोग देग चढ़वा कर खाना बनवाते हैं और उसके बाद सारा लोग जो रहते हैं वो लोग खाते हैं। कई जगह ये देखने में मिला है। तो ऐसी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी का हक है कि वो खाना अहले मैयत के लिए तैयार करे। अबू दाऊद शरीफ के अंदर में हदीस है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आले जफ़र के लिए खाना तैयार करो, भला सुबह उन्हें ऐसा मामला दरपेश आया है जिसमें वो मशगूल है, यानी वो परेशानी में मशगूल हैं, तो इसलिए उनके लिए खाना तैयार करो। अबू दाऊद शरीफ के अंदर में ये मौजूद है। तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में यह है कि जनाजे को जल्दी लेकर जाना।
تو گھر والے کو یہ ڈیوٹی ہے کہ جو جنازہ جو انتقال کر گئے ہیں تو ان کو بہت دیر تک گھروں کے اندر میں نہیں رکھنا ہے، ان کو جلدی لے کر جانا ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ جلدی کرنا ہے، دوسرا ہے کہ اگر ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بھئی اتنا ٹائم میں ان کو دفن کرنا ہے اور اتنا ٹائم میں جنازہ پڑھنا ہے، تو اس کو بھی اب وہاں پر بھی لے جانے میں بھی جلدی کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ڈیٹ ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ڈیلے کر رہے ہیں، ترنت لے جائیے اور ترنت اس کو پرفارم کیجئے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر میں روایت موجود ہے، اس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنازہ لے کر جلد لے کر چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو بھلائی کے طرف نزدیک کر رہا ہے، اگر اس کے سوا ہے تو ایک سر ہے جسے تم اپنے گردنوں سے اتار رہے ہو، تو اس لیے آپ کو اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ اب جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقہ سے جنازے کے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر میں روایت موجود ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے۔ کوئی آدمی اگر گاڑی پر ہے، اس کے بعد سواری ہے، تو وہ جنازہ کدھر چلے گا؟ پیچھے چلے گا، اور پیدل لوگ اس کے پیچھے آگے دائیں بائیں اس کے قریب چلے۔ اور پیدل لوگ ہیں وہ جنازہ کے آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں، بغل دائیں بائیں دونوں سائڈ کدھر سے بھی چل سکتے ہیں، مگر جو سوار ہے اس کو پیچھے ہی چلنا ہے۔ اور جو بچہ ناقص پیدا ہو اس کے بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ اس میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہو، جنازہ پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے؟ تو یہ حدیث اس کا دلیل ہے، تو اس کے لیے بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلے درس کے اندر میں بتایا گیا تھا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو جب وہ 4 مہینہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر میں روح پھونک دیا جاتا ہے۔ تو جب روح پھونک دیا جائے تو اب اس کے بعد انتقال ہوتا ہے، یعنی 4 مہینہ کے بعد سے اگر وہ ناقص ہی پیدا ہو یا مرا ہوا پیدا ہو، پورا ہو کر پیدا ہو، یا 5 مہینہ پر یا 4 مہینہ کے بعد پیدا ہو، تو اس کا بھی جنازہ پڑھنا چاہیے اور ان کے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر میں ایک مسئلہ وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ میت کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ، کہ میت کو دیکھ کر کھڑا ہونا ہے کہ نہیں، اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے۔ تو ابو داؤد شریف اور مسلم شریف کے اندر میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر بعد میں بیٹھنے لگ گئے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی جنازہ دیکھتے، چاہے وہ یہودی کا ہو یا نصارہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ بیٹھنے لگے، اب کھڑا نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے والی کھڑا والی بہت ساری حدیث ملے گا، یہ حدیث اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس میں ایک اور اصول بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی حدیث جو ہوتا ہے منسوخ ہو جاتا ہے، تو منسوخ ہونے کے لیے وجاہت ہو، جس طریقہ سے اس میں وجاہت ہے۔ اب آپ کو بہت سارے حدیثوں کتاب میں آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ حدیث دیکھیے گا تو کہیے گا کہ کھڑے ہو جانا ہے، مگر اس حدیث میں اس کا دلیل مل رہا ہے کہ وہ کیا ہو گیا، کہ منسوخ ہو گیا۔ منسوخ ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے وہ عمل تھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ترک کر دیے، اب کھڑا نہیں ہوتے تھے، یعنی بیٹھے رہ جاتے تھے۔ تو یہ اس کا وجاہت ہے۔ اسی طریقہ سے ابو داؤد شریف کے اندر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں جنازے کے لیے ساتھ جاؤ تو جب تک اسے نیچے نہ رکھ دیا جائے مت بیٹھو۔ اب اس میں ایک اب جنازہ کے ساتھ جو آدمی چل رہا ہے تو کھڑا ہو کے چل رہا ہے، تو وہ نہیں بیٹھے گا۔ وہ کب بیٹھے گا؟ جب جنازہ زمین میں رکھ دیا جائے تب وہ بیٹھ سکتا ہے، جب تک جنازہ اوپر اٹھا ہوا ہے اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہو گیا جنازے میں چلنے کا طریقہ کہ آپ کو کس طریقہ سے جنازے میں چلنا ہے۔ اس کے بعد اب جنازے میں اب جائیں تو میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب میت کے لیے دعا، جنازہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میت کے لیے اسپیشل
दुआ करते हैं। तो अबू दाऊद शरीफ के अंदर में ये रवायत मौजूद है। इसका रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम किसी मैयत का जनाजा पढ़ो तो उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। यानी उसका एक मुसलमान इंसान इंतकाल कर गया है तो आपके अंदर में इखलास, तड़प और इस फिक्र से होना चाहिए कि अल्लाह ताला इसको क्या कर दे, मगफिरत कर दे। उस निस्बत से होना चाहिए, ये नहीं कि हमसे उससे दुश्मनी था, झगड़ा था तो हम काहे के लिए उतना दुआ करें, उसको सजा ही दे, ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। इखलास के साथ अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करना चाहिए। उसके बाद अब अगर जनाजा पढ़ने जा रहे हैं तो जनाजा पढ़ने में मैयत के लिए जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है, ये भी सबसे अहम चीज है। सबसे पहली बात यह है कि आप जनाजा लेकर निकल रहे हैं तो हर अमलों का दारोमदार नियत पर है। तो आप जब जनाजा लेकर निकल रहे हैं या जनाजे के साथ जा रहे हैं या शामिल हो रहे हैं तो आप उसी नियत से उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आपका नियत का तकाजा जो है वो पूरा हो गया। अब आप जनाजा में जब खड़ा होंगे तो 4 तकबीरों पर जनाजे की नमाज पढ़ना है। कितने तकबीर में? 4 तकबीर में पहला तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथ को क्या करना है, बांधना है, और बांधने के बाद से सूरे फातिहा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सूरे फातिहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सूरा फातिहा नहीं, सना पढ़ना है। और फिर लिखते हैं वो लोग कि अगर कोई आदमी सना के नियत से सूरा फातिहा पढ़ ले तो भी ठीक है। ये कौन लॉजिक है भाई? और बुखारी शरीफ के अंदर में रवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि नजासी का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात की खबर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ईदगाह गए। फिर आप सब बंदी की और 4 तकबीरें कहें। यानी जनाजे की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तकबीरों के साथ नमाज पढ़ें। उसके बाद है कि अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर फरमाया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये सुन्नत है। ये बुखारी शरीफ के अंदर में रवायत है। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोर से सूरह फातिहा पढ़कर और हुक्मन ये बात कहा कि यही सुन्नत तरीका है, यानी सूरह फातिहा आपको पढ़ना है पहले तकबीर में, ठीक है। और उसका ये दलील है। और आपको एक इवेंट आप बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में एक बहुत बड़े आलिम हैं, अभी मौजूद हैं, तकी उस्मानी साहब। उनके भाई साहब का जब इंतकाल हुआ कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने भाई साहब, उनके भाई भी जो हैं वो बहुत बड़े मुफ्ती हैं, पाकिस्तान के थे, तो उनका जब जनाजा वो पढ़े तो पहले तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़े। तो ये लोग दूसरे को तो मना करते हैं कि सूरह फातिहा मत पढ़ो, मगर अपने घर पर पढ़ा तो सूरह फातिहा पढ़ लिया। कहा भाई कि सुन्नत तरीका ही है, तो पहले तकबीर में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल का अगर हुक्म आ जाए तो फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप कुरान और सुन्नत के हिसाब से पढ़िए और तब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेगा। तो पहला तकबीर में सूरह फातिहा पढ़ना है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर वजाहत कर दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जनरल हदीस है कि बगैर सूरह फातिहा की कोई नमाज नहीं होती है। यानी हर नमाज में सूरह फातिहा है। आप देखिएगा, नफिल नमाज हो, फर्ज नमाज हो, सब में सूरह फातिहा है। आप फर्ज नमाज, जुम्मा के नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो सूरह फातिहा हर नमाज के अंदर में है। अब उस हवाले से भी इस नमाज में भी क्या हो गया, सूरह फातिहा हो गया। और सहाबा का अमल और सहाबा का सुन्नत कह देना ये मरफू हदीस का दलील होता है। उसूल हदीस के अंदर में अगर कोई सहाबा ये कह दे कि ये सुन्नत तरीका है तो वो रसूल के हवाले से होगा। या सुन्नत जो बयान किया जाता है वो रसूल के हवाले से, और रसूल के हवाले से कोई बात बयान कर देना वो मरफू हदीस होता है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसको तस्लीम करना चाहिए और सही तरीके से अपने भाई के लिए जनाजे के नमाज पढ़ना चाहिए कि उसका फायदा पहुंचे और वो सुन्नत के मुताबिक हो।
दूसरा, जब तकबीर कहा जाए तो आपको दुरूद पढ़ना है। दुरूद सबसे बेहतरीन दुरूद जो है, जो जामे दुरूद है, दुरूद इब्राहिमी है, जो हम लोग नमाजों के अंदर में पढ़ते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद से तीसरी तकबीर कहा जाए तो आपको मैयत के लिए दुआ पढ़ना है, ठीक है ना। कई दुआ है, जो आपको याद हो वो दुआ पढ़ें। और उसके बाद चौथी तकबीर जब कहा जाए तो आपको क्या करना है, सलाम फेरना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अल्लाहु अकबर से नमाज का शुरुआत होता है और सलाम से नमाज खत्म होता है। और जब तक नमाज खत्म न हो, आपका नमाज का कैफियत भी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधा हुआ है, तो आप ये नमाज के कैफियत में आ गए। अब यहाँ से हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे आदमी को मैंने कई बार जनाजा में गया तो देखा कि वो अभी सलाम फेरने से पहले हाथ छोड़ देता है, उसके बाद सलाम करता है। अरे भाई, अभी आप सलाम जब तक फेरेंगे नहीं, आपका नमाज खत्म नहीं हुआ। तो आप क्या करना है, सलाम फेरना है। जब सलाम फेर देंगे, अब आपका नमाज खत्म हो गया। तो नमाज की कैफियत में जो आए थे उससे आप बरी हो, और नमाज के अंदर ही आपको दुआ पढ़ना है। बाद में इज्तिमाई दुआ वगैरह करते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। उसी के अंदर में दुआ पढ़ना है। ये चीज हुआ नमाज जनाजा पढ़ने का। इसलिए कि जब हम अपने भाई के जनाजे में जाएं तो उसका हुकूक कैसे पूरा करेंगे, तो उसका हुकूक तभी पूरा होगा जब मैं सही तरीका से उसके लिए दुआ करें, सही तरीका से उसके लिए नमाज पढ़ें और सही तरीका कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस पर अमल करें। अब रहा कि जनाजे में अगर सहू हो जाए, गलती हो जाए, जैसे हम लोग नमाज में गलती करते हैं तो उसका सीधा सहू करते हैं ना, तो अब अगर जनाजे में सहू हो जाए तो उसके लिए क्या करना है। तो बुखारी शरीफ के अंदर में एक आपका असर मौजूद है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और 3 तकबीर कही, फिर सलाम फेर दिया। उन्होंने 3 ही तकबीर पूरा किया था और 3 तकबीर के बाद क्या कर दिया, उन्होंने सलाम फेर दिया। उस पर उन्होंने, लोगों ने उनको बताया कि आप तो 3 ही तकबीर कहे हैं, तो उन्होंने दोबारा किबला रुख होकर खड़े हो गए और चौथी तकबीर कही, फिर सलाम फेरा। तो ये आपका अगर जनाजे में छूट जाए तो उसका तरीका है। अब उसमें सीधा सहू में तो 2 सीधा करना होता है ना, मगर इसमें वैसा नहीं है। आप जितना छूट गया है उतना करिए और उसके बाद से फिर सलाम फेर दीजिए, ठीक है ना। पूरा नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। ये सहाबी का असर बयान कर रहा है। उसी तरीका से अगर आप जनाजे के अंदर में जा रहे हैं और 4 तकबीर का जनाजा है, 2 तकबीर इमाम कह चुका है, आप गए, तो आप क्या करेंगे भाई, तो आप भी अल्लाह अकबर करके शामिल हो गए और पहला तकबीर में जो आपको पढ़ना है सूरह फातिहा वो पढ़िए, दूसरा तकबीर में दुरूद पढ़िए और उसके बाद से 2 तकबीर के बाद से तो इमाम साहब सलाम फेर देंगे, तो आपको सलाम फेरने की जरूरत नहीं है। तीसरी तकबीर कहेंगे और तीसरा आप दुआ करेंगे, चौथी तकबीर करके आप सलाम फेरेंगे। तो इस तरह करके आप सलाम फेर कर पूरा करेंगे। क्लियर है जी। तो ये हो गया जनाजा अपने भाई के लिए। अच्छा, अगर आप आए और जनाजा खत्म हो चुका है, चला गया, अगर कब्र दिला गया, बाद में आए, तो कब्र पर भी जाकर आप इनफरादी तौर पर भी जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। और ये भी रवायत इस पर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मस्जिद के अंदर में सफाई करने वाली औरत थी जिसका इंतकाल हो गया, तो रात में ही सहाबा दफन कर दिए। देखिए, हमने पहले बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर सहाबा किस तरह अमल करते थे कि उनको पता था कि आपका जो इंतकाल कर जाए उसको जल्दी करना है, तो रात को उनको पता चला, रात को ही जनाजा पढ़ वगैरह करके और दफन कर दिया। रसूल को भी नहीं बताया। बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि वो औरत कहाँ है, तो इंतकाल कर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग हमको बताए क्यों नहीं। इससे पता ये भी चलता है कि जब इंतकाल हो जाए तो इसका इंफॉर्मेशन दोनों लोगों को तक पहुंचाना चाहिए, कि लोगों को खबर पहुंच जाए। तो खबर पहुंचाना, ठीक है ना, ये गलत नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दिया, ठीक, खबर पहुंचाना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ उसका कब्र कहाँ है, तो कब्र उसका
बताया गया और वहां पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी। ठीक है, उसी तरीका से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद जो जनाजा हुआ है तो वो भी इनफरादी हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल किए तो उनका भी जनाजा क्या हुआ है, इनफरादी हुआ है। तो जनाजा अगर आपका छूट गया है तो आप इनफरादी कब्र पर पढ़ सकते हैं। उसी तरीका से एक और अहम चीज है कि अगर कोई आदमी दूर दराज इंतकाल कर गया, आपका बहुत करीबी है, ये है, तो उसके लिए गायबाना नमाज जनाजा भी आप कर सकते थे। जिस तरीका से पिछले हदीस में मैंने नजासी का जो हवाला दिया, तो नजासी जो है नजस का एक बादशाह था जो ईमान लाया था और वो नजस में ही रहता था, और जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई फरिश्तों के जरिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ईदगाह में जाकर गैबाना जनाजे नमाज पढ़ा। तो ये चीज जनाजे के हवाले से है, इसको इसी तरीका से करने की कोशिश करना चाहिए। अपने भाई के लिए सही तरीका से इखलास के साथ दुआ और सही तरीका से नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद अब कब्र के पास लेकर जाना है। अब क्या होगा, जनाजा पढ़ लिए तो आपको कब्र के पास ले जाना है, दफन किस तरह करना है, उसका क्या सुन्नत तरीका है कुरान और हदीस के रोशनी में, उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो पहला इसमें नुक्ता है कि कब्र के पास किस तरह बैठे। ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर में हदीस है, हजरत बारा बिन आजिज रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ एक अंसारी के जनाजे में गए और हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी लहद नहीं बनी थी, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर बैठ गए और हम भी आपके साथ बैठ गए। यानी अगर आप लेकर जाते हैं जनाजा को और अभी प्रोसेस में डिले है, कब्र खुदा रहा है या कुछ प्रोसेस में डिले है, अगर आपको बैठना है तो किबला रुख होकर बैठना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। ठीक है ना, इसलिए नहीं कि जिधर जिधर आप बैठ गए, तो आपका सुन्नत तरीका है कि किबला रुख होकर बैठना चाहिए। उसी तरीका से कब्र के अंदर में जो मैयत को उतारना है तो किधर से उतारना है, तो मैयत को कब्र में पैर के तरफ से उतारना है। जैसे कब ऐसे कब्र है ना, सर इधर है तो पैर के साइड से उसको एंट्री करना है, ये सुन्नत तरीका है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर में ये रवायत मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान करते हैं कि मैयत को उसके पाँव के तरफ से कब्र में उतारा करो, यही सुन्नत तरीका है। ठीक है ना, इन्होंने भी सुन्नत का हवाला दिया है। ठीक है ना, उसके बाद से कब्र में उतारते हुए क्या दुआ पढ़ना है। अब ये कब्र में उतारना है, दाहिने आपका पैर के तरफ से उतारिए और उतारने के लिए क्या दुआ पढ़ना है, तो ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर में रवायत मौजूद है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में उतारते तो यूं फरमाया करते थे, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नते रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, यह तरीका है उतारने का। उसके बाद से 3 मुट्ठी मिट्टी डालना है, और मिट्टी किधर से जाना है, तो सिरहाने से डालना है, सर के तरफ से मिट्टी आपको डालना है। और कितना डालना है, 3। मिट्टी डालने के लिए कोई भी मखसूस दुआ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी यूं ही डालिए। ठीक है ना, इसलिए कि जो दुआ पढ़ा जा रहा है उसी में वो शामिल है, ये जो बिस्मिल्लाहि अला सुन्नत रसूलिल्लाह। और ये कम्मन एक उसूल है, एक कम्मन उसूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम के लिए बिस्मिल्लाह करते थे। बुखारी के अंदर में ये इमाम बुखारी ने बाप बांधकर इसका वजाहत किया है, तो इसीलिए आप बिस्मिल्लाह करके 3 मुट्ठी आपको सीधाने डालना है। इब्ने माजा के अंदर में ये रवायत मौजूद है, इसका रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज जनाजा पढ़ी, फिर मैयत के कब्र के पास तशरीफ लाकर उस पर सिरहाने से 3 मिट्टी डाली, 3 मुट्ठी मिट्टी डाली। तो 3 मिट्टी सिधाने से डालना है, पैर की तरफ नहीं, सिधाने से ही मिट्टी डालना। ठीक है जी। उसके बाद दफन करने के बाद, अगर दफन जब कर लेते हैं आप तो क्या करना है, तो उसके लिए इस्तिगफार और साबित कदमी का दुआ करना है। यानी दफन करने के बाद से आपको रुकना है और रुक कर उसके लिए दुआ करना है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर में ये रवायत मौजूद है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फारिग हो जाते तो किबला
तो कब्र पर रुकते और फरमाते अपने भाई के लिए इस्तगफार करो और साबित कदमी के दुआ करो, बेशक अब इसमें सवाल किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या साबित है जी, कब्र पर दफन होने के बाद कि उसके लिए इस्तगफार करना है और साबित कदमी का दुआ करना है। कुरान नहीं पढ़ना है, कुल नहीं पढ़ना है। कहाँ से ये लोग निकाल कर लाया है, अब वो ये लोग जाने, अल्लाह वाला। इसलिए कि अब क्या जरूरत है, उसको तो मगफिरत की जरूरत है, तो इस्तगफार कीजिए। अब वो सवाल का जवाब उससे पूछा जाएगा तो साबित कदमी का दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको आसान करे सवाल और जवाब। इसलिए कि सवाल जवाब के बाद से उसको निजात का दरवाजा मिलने वाला है, और सवाल जवाब में फेल होगा तो उसकी मुश्किलात में आना है। तो उस वक्त वो काम करना है जो उसके लिए जरूरी है। तो ये हम लोगों को दफन करने के बाद रुकना चाहिए और रुकने के बाद उसको अमल करना चाहिए। तो ये रहा दफन करने तक और दफन करने के बाद तक का। अगर कोई इंसान जनाजा में जाता है और दफन तक रहता है, ये सारी अमल करता है, तो इसका अजर सवाब क्या है, तो ये मुस्लिम शरीफ के अंदर में इस पर रवायत मौजूद है। इसका भी रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने जनाजा पढ़ा और उसके लिए 1 क़िरात अजर है, और जो कब्र में डालने तक साथ रहा उसके लिए 2 क़िरात। उनके शागिर्दों ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा क़िरात क्या है, तो उन्होंने कहा उहद के बराबर, यानी उहद पहाड़ के बराबर सवाब का इसके अंदर में वजाहत किया गया है। ठीक है जी। तो ये रहा कि अपने भाई के लिए जनाजे में जाना है तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, किस तरीका से आपको उसको अंजाम देना है, कुरान और सुन्नत के रोशनी में दलाइल के साथ आपके पास वजाहत किया गया। तो आज हमने इस दर्स के अंदर में मुसलमानों के जो 6 अहम हुकूक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस के अंदर में बयान किया है कि एक मुसलमान जब सलाम करे तो उसका जवाब किस तरह देना है, इसका मुदल्लल वजाहत के साथ पिछले दर्स के अंदर में मैंने बयान किया था। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर मुसलमान को छींक आता है तो छींक आने में उसको क्या करना है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, इसका भी पूरा वजाहत के साथ कुरान और सुन्नत में जितनी बातें थी मैंने उसको जमा करके आपके पास रखने की कोशिश किया। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा चीज कि कोई मुसलमान आपसे मशवरा तलब करता है तो उसको मशवरा जो देना है वो बेहतरीन मशवरा देना है। और ये तीनों चीजें पिछले दर्स के अंदर में बयान किया गया था। उसके बाद से 3 चीजें आज मैंने बयान किया। पहला चौथा जो था कि जब कोई दावत आपको दे, कोई मुसलमान आपको दावत दे तो उस दावत को कबूल करना है और उसको उसमें शामिल होना है। अगर किसी शरई उजर के एतबार से या रोजा की वजह से अगर शामिल नहीं हो रहे तो उसके लिए दुआ करना है। इसका भी जितनी भी प्रोटोकॉल था हमने इसमें बयान किया। फिर उसके बाद से कोई बीमार हो जाए मुसलमान भाई तो उसके लिए इयादत के लिए हाजिर होना है और उसके लिए पॉजिटिव बात बोलना है। आप जो मदद कर सकते हैं उसके लिए करना है। सबसे आसान जो तरीका है वो दुआ है। देखिए हम लोग का क्या चीज है कि हम लोग प्रोसेस को थोड़ा सा उल्टा कर दिए। सबसे पहला काम दुआ होता है, फिर दवा होता है। हम लोग क्या प्रोसेस बना लिए हैं कि पहले दावा करते हैं और दावा में जब फेल हो जाते हैं तब दुआ नहीं। पहला काम कि हर चीज में पहले अल्लाह से तलब करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मौजूद है कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे जूते का जो फीता होता है ना उसकी भी जरूरत हो तो अल्लाह से मांगो। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर काम के लिए पहले अल्लाह के तरफ रुजू होइए और उसके बाद से असबाब का इस्तेमाल कीजिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस असबाब में आपके लिए क्या करेगा? आसानी पैदा करेगा और वो काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने भाई के लिए, मुसलमान भाई के लिए। तो बीमार हो तो बीमारी से मिलने जाइए। हो सकता है कि आपके जाने की वजह से, आपके मशवरा की वजह से उसके लिए आसानी हो जाए। और अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, जितने लेवल का है वो करिए। उसका भी जितना भी अहम बातें थी हमने इसके अंदर में रखा। उसके बाद जनाजे के अंदर में जब वफात पाए आपके मुसलमान भाई तो उसके साथ जनाजे के अंदर में जाना है। तो जनाजे में जाने से लेकर और उसके दफन करने तक कुरान और सुन्नत में जो सही हदीस
اور قرآن کے حوالے سے جتنی باتیں بیان کرنا تھا میں نے آپ کے پاس رکھ دیا. الحمدللہ امید کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کا درس کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.